Good morning, sir. Good morning, good morning. So I hope you can see the screen today. Screen the Yes, okay, sir. that's great. Okay, so what we were doing? Yes. Remember now. We were showing that we were showing that we're showing that this इसको पतला कर ले पेन की निब मोटी हो गई ओके so this is locally compact if only all if and only if all alpha excess except finitely many are compact and the rest are locally compact. ये हम लोग कल प्रूव कर रहे थे और इसमें हम लोग ये वाला पार्ट कर चुके थे. So now we prove this thing. So we assume this part. So this, suppose I call this a star. So assume star. So we need to show that if the topological spaces X alphas are such that all of these except finitely many are compact and the rest are locally compact, then the product is going to be locally compact. तो कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे कि इसके हर एलिमेंट की एक कॉम्पैक्ट नेबरहुड है. सो लेट x जिसके मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स है this be an element of pi x alpha, this thing. Okay, so how do I show it? How do I show it? सर कोई ज्वाइन होना चाहता है? अच्छा. Okay, I didn't get. हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ा. So okay. Let x alpha j from 1 to n alpha j belonging to this be locally compact and x alpha where alpha is not equal to alpha j be compact. क्योंकि मान के चल रहे हैं कि इनमें से केवल फाइनाइटली मैनी जैसे कि मान लीजिए कि वो फाइनाइटली मैनी है x अल्फा 1, x अल्फा 2, x अल्फा 3 वगैरह x अल्फा n, वो सब लोकली कॉम्पैक्ट हैं और बाकी सब के सब कॉम्पैक्ट हैं. Now you see that
since x इसका अल्फा jth coordinate belongs to the alpha jth factor of this thing, ये इसको बिलोंग करता है, राइट, ये इसको बिलोंग करता है. For every j, and since each of this thing is given to be locally compact, this has a compact neighborhood. कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए NLJ इन XLJ, मान लीजिए ऐसा है, राइट. अगर ऐसा है, सो बिकॉज देखिए ये जो है आपके पास ये जो देखिए ये जो एक्स अल्फाज हैं, इसमें से कैपिटल एक्स अल्फा 1, एक्स अल्फा 2, एक्स अल्फा n, ये सब के सब लोकली कॉम्पैक्ट हैं. तो इनके सभी एलिमेंट्स, हाँ बोलिए. Sir, someone wants to join the class. Okay, but I can't see it. No, ऐसा नहीं है, because there is no notification. जितने हैं सब ज्वाइन कर चुके हैं from my end, right? तो हो सकता है उन्होंने ज्वाइन कर लिया अब तक, क्योंकि इस पे आ नहीं रहा बेटा है. Okay, so because each of this is locally compact, each of its element is going to have a compact neighborhood. Accordingly, x alpha j is a compact neighborhood, जिसका नाम ने दे दिया n alpha j, right? So now you see that okay, तो देखिए यहाँ पे इस तरह की स्थिति है, ये पाई एक्स अल्फा है और यहाँ से ले करके अल्फा 1, अल्फा 2, इन जनरल अल्फा जे पर आपके पास प्रोजेक्शन मैप है. ठीक है, यहाँ पर आपका एलिमेंट है एक्स अल्फा जे और ये बिलोंग कर रहा है, इसकी नेबरहुड है एन अल्फा जे, इसकी नेबरहुड है एन अल्फा जे, राइट. सो देयरफॉर देयर एक्सिस्ट सम ओपन, कुछ नाम दे देते हैं उसका भी, मान लीजिए जी अल्फा जे इन एक्स अल्फा जे सच दैट एक्स अल्फा जे, चूंकि एन अल्फा जे इसकी नेबरहुड है, तुम दोनों के बीच में एक ओपन सेट आएगा, उसी ओपन सेट को हमने बोला है जी अल्फा जे. I'll have this thing, right? I'll have this thing. I will have this thing. So now what we do is, हमको चाहिए क्या? Remember, what I want is, I want a compact neighborhood of this thing. Now you see that note that intersection of P alpha j inverse U alpha j, j varying from 1 to n, अगर आप भूले नहीं हो तो this is a typical basic open set in the product topology. Note that this is a standard basic open set in the product, and इसकी शक्ल क्या है? इसकी शक्ल इस तरह की होगी. ये कैसे है? दिस थिंग इज इक्वल टू, जो
हम लोग देख चुके थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, अल्फा जे इनवर्स यू अल्फा जे जो है, तो वो कैसा है देखने में? वो देखने में ऐसा है, दिस इज पाई जे फ्रॉम 1 to n। देखने में कैसा है? पाई वाई अल्फा अल्फा बिलोंगिंग टू ए, where each y alpha is equal to x alpha if alpha is not equal to alpha j। और अगर अल्फा बराबर अल्फा जे तो y alpha j is equal to u alpha j। So let me write where y alpha is equal to x alpha if alpha is not equal to alpha j, and it is equal to u alpha j if alpha is equal to, हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं इसको, इस तरह की शक्ल होती है इसकी, राइट। तो देखने में कैसा होगा? दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस थिंग। जितने वाई अल्फाज होंगे, जैसे मान लीजिए अब ये तो अनगिनत है, इसलिए हमको इसको हम लिख नहीं पाएंगे, राइट, क्योंकि तो आर्बिट्रेरी है, ना काउंटेबल है, ना फाइनाइट है, तो उसको लिखना मुश्किल है। लेकिन है क्या, सब जगह, लगभग सब जगह एक्स अल्फा एक्स अल्फा एक्स अल्फा एक्स अल्फा है। केवल कुछ जगहों पर, फाइनाइट जगहों पर अल्फा 1th अल्फा 2th अल्फा न जगह पर बजाय एक्स अल्फा होने के इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू यू अल्फा 1 यू अल्फा 2 यू अल्फा। ये इसकी शक्ल है। सो यू कैन सी दैट योर this element x, this belongs to intersection of p alpha j inverse u alpha j, इसको बिलोंग करेगा, राइट। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अल्फा जो अल्फा जे के बराबर नहीं है, सारे एक्स अल्फा कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? एक्स अल्फा बिलोंग कर रहे हैं। और जो अल्फा बराबर अल्फा जे के है, तो वो वाला अल्फा जे जो है, अच्छा यू तो कहीं था ही नहीं, हमने जी लिखा था यहाँ पे, तो हमने जी की जगह यहाँ यू कर दिया, तो हम एक जगह बदलेंगे, चाहे यहाँ बदले चाहे यहाँ बदले। मे बी आई चेंज इट हियर, यहाँ भी हमने यू लिख दिया है, तो कम जगह बदलने की अच्छा यहाँ बदल दें हम। सो लेट मी राइट दिस थिंग एज, ये क्या था? दिस इज यू अल्फा जे, दिस इज यू अल्फा जे, ये कुछ नहीं है। राइट, तो उसी यू को, जी को हम गलती से यहाँ यू लिख दिया, लेकिन तो चूंकि ये नेबरहुड था तो ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। तो दिस हम कह रहे थे कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या तो अल्फा बराबर अल्फा जे होगा या अल्फा बराबर अल्फा जे के नहीं होगा। अगर अल्फा बराबर अल्फा जे के हुआ तो अल्फा जे बिलोंग्स टू यू अल्फा जे, राइट। तो ये तो यहाँ पर है ही है, और जो बाकी जो है वो तो इसको बिलोंग कर ही रहे हैं। सो यू कैन सी दैट दिस थिंग इज गोइंग टू बिलोंग टू दिस थिंग, and this thing is going to be contained in क्योंकि u alpha j is contained in alpha j। तो ये जो प्रोडक्ट है, जहां पर u alpha j आ रहा है, अगर आपने उसकी जगह पे n alpha j लिख दिया, उससे और बड़ा हो जाएगा। So this thing is actually going to be contained in how do I write? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई जेड अल्फा, रोटेशन मत घबराइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वेयर जेड अल्फा इज इक्वल टू एक्स अल्फा इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा जे, एंड दिस इज इक्वल टू n alpha j if x is equal to x alpha j, x is equal to x alpha, हम क्या लिख दिया हमने? if
if x alpha, if alpha is not equal to alpha j, if alpha is equal to alpha j। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है, अगर हम इसको समझाने के लिए, हालांकि वो सही तरीका नहीं है, मान लीजिए तीन होते हैं हमारे पास, x1 क्रॉस x2 क्रॉस, तीन ही होते, तो समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, तुम्हारा जो x जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लीजिए x1 x2 x3, ये x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो गया और यहाँ पर x3 हो गया। इनमें से मान लीजिए कि ये लोकली कॉम्पैक्ट है, दो को मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये लोकली कॉम्पैक्ट है, ये भी लोकली कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है। अब हमने क्या बताया कि जो लोकली कॉम्पैक्ट वाला पार्ट है, जो लोकली कॉम्पैक्ट पार्ट वाला है, तो ये जो है दिस इज कंटेन्ड इन समथिंग लाइक n1, दिस इज कंटेन्ड इन कॉम्पैक्ट नेबरहुड n2, और इनके बीच में एक आ रहा है ओपन सेट u1, एक आ रहा है u2। सो x1 बिलोंग्स टू u1 एंड दिस इज कंटेन्ड इन दिस थिंग, राइट। तो हमने क्या किया है कि हमने क्या किया कि नया बना लिया है एक u1 क्रॉस u2 क्रॉस x3, ये बना लिया। तो अब देखिए ये फिर भी बिलोंग करेगा, चूंकि x1 जो था पहला कोऑर्डिनेट तो केवल u1 के अंदर था, तो इस पे चला जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट u2 में तो यहाँ चला, थर्ड कोऑर्डिनेट तो इसके अंदर बिलोंग कर ही रहा है, तो ये हो गया। एंड दिस थिंग इज कंटेन्ड इन, दिस थिंग इज कंटेन्ड इन u1 is contained in n1, this is contained in n2 and this is contained in n3, sorry n3 नहीं, x3, sorry, so this is contained in x3, this contained in x3। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये चीज, ये जो चीज है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, ये कुछ कुछ ऐसा है, ये वाला पार्ट है। और ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है, ये जो इसके बराबर है, जो इसके बराबर है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है वो कुछ कुछ ऐसा है, ये वाला, राइट। तो फाइनाइट केस में देखना सरल हो जाता है, लेकिन आर्बिट्रेरी केस में थोड़ा सा आपके इमेजिनेशन को आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। सो यू कैन सी दैट दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू दिस थिंग एंड दिस इज कंटेन इन दिस थिंग। अब ये क्या है, इसके जो सभी फैक्टर्स हैं, z अल्फा या तो x अल्फा या n अल्फा जो है, x अल्फा उन सभी अल्फा के लिए जो कि अल्फा j के बराबर नहीं, सबके ये कॉम्पैक्ट है, ये कॉम्पैक्ट है, और n अल्फा j तो सारे कॉम्पैक्ट नेबरहुड सही है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पैक्ट स्पेसेस, राइट। सो यू कैन सी by Tikhonov theorem, which says that a product of compact spaces is compact, phi z alpha is compact, being a product of compact space, क्योंकि सबसे ये भी compact है, ये भी compact है, right? So this is, and this is open, basic open है, containing x, so this is going to be a compact neighborhood of this thing. So phi z alpha is a compact neighborhood of x. So each element of pi x alpha turns out to have a compact neighborhood. Therefore, this thing is locally compact, right? So this completes the proof. This completes the proof, right? That a product of topological space is locally compact if and only if all but finitely many are compact and the rest are locally compact. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, Yes, sir.
ओके, सो नाउ हमने कहा था कि इसके बाद इसको बंद कर देंगे एंड विल गो टू द लास्ट टॉपिक, क्योंकि अभी हमको वो भी करना है, फंक्शनल एनालिसिस भी करना है. तो नाउ वी शैल गो टू द लास्ट टॉपिक इन टोपोलॉजी, उसके बाद फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट होगा, राइट. तो उसके लिए अब हम चूंकि अब टोपोलॉजी वाला पार्ट खत्म हो गया है, एक्सेप्ट दैट वी मे यूज सम ऑफ दीज टर्म्स व्हेन डूइंग द अदर पार्ट फंक्शनल एनालिसिस आल्सो. तो अब लास्ट टॉपिक जो बचा है, तो हमने टोपोलॉजी में सेपरेशन एक्शन देख लिए, कॉम्पैक्टनेस पढ़ लिया, काउंटेबिलिटी एक्शंस पढ़ लिया, सेपरेबिलिटी पढ़ लिया, कुछ और चीज़ें पढ़ ली, एग्जाम्पल्स वगैरह, डेफिनेशंस वगैरह. लास्ट टॉपिक जो है आपके सिलेबस के हिसाब से वो है कनेक्टेडनेस, राइट. तो कनेक्टेड का जो जो मैथमेटिक्स नहीं भी जानता होगा, तो वो ये अंदाज लगाएगा कि कनेक्टेड का मतलब क्या हो, टोपोलॉजिकल स्पेस शुड बी कॉल कनेक्टेड अगर इसको हम दो पीसेस में नहीं तोड़ सकते. अब दो पीस में नहीं तोड़ सकते हैं, इसी को टोपोलॉजी की भाषा से प्रिसाइज बनाना है कि इसका अर्थ क्या हुआ. लेकिन मोटा मोटा इतना मालूम है कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि अब जैसे रेल लाइन है, तो हम टोपोलॉजी नहीं भी जानते हो तो सब कहेंगे कनेक्टेड लग रहा है, इसमें कहीं कोई चीज टूटी फूटी, मतलब कोई चीज अलग नहीं है. उसी जगह हम ये लिख देते हैं, मान लीजिए सपोज आई राइट जैसे 1 2, अब ये सेट ले लें विद सब स्पेस टोपोलॉजी, इसमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे डिस्कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, 1 और 2 के बीच में गैप है, 2 और 3 के बीच में गैप है, 3 और 4 के बीच में गैप है, तब ये डिस्कनेक्टेड है. सो वी गेट ओनली ए फीलिंग. लेकिन ऑफ कोर्स इसको हमने डिफाइन नहीं किया है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि हाउ टू मेक दिस इंट्यूटिव फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस प्रिसाइज थ्रू द लैंग्वेज ऑफ टोपोलॉजी. एंड हियर इज द डेफिनेशन. ए topological space is called connected if there does not exist any pair AB of non-empty disjoint open subsets of X such that हम X को दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाए. जैसे ये मान लीजिए हमारा ये X है, ये हमारा X है मान लीजिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इसको डिवाइड कर लें इस पार्ट, इस तरह से. ये एक पार्ट है, बोथ आर ओपन, बोथ आर डिसजॉइंट, उनका यूनियन एक्स के बराबर. ये नहीं होना चाहिए. आई शुड नॉट बी एबल टू पार्टीशन एक्स बाय मींस ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स, राइट. ये इसकी परिभाषा हुई. नाउ बिफोर वी डू एग्जांपल्स, अगर हम लोग एक थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट प्रूव कर लेंगे तो एग्जाम्पल देना और सरल हो जाएगा, राइट. तो बाय द वे रिमार्क, the pair AB of subsets as described above is often called a disconnection of X. ठीक है. दूसरा, also if X
is not connected, then it is called obviously disconnected. ठीक है, तो लेकिन यहां पर थोड़ा सा यू कैन सी एक थोड़ा सा मतलब a space can be connected as well as disconnected. For example, you can see that what is the example? चलिए पर हम एग्जाम्पल बाद में करेंगे, पहले तो हमने बताया कि पहले एक रिजल्ट करते हैं उसके बाद एग्जाम्पल्स पे आएंगे, इकट्ठा एक साथ कर देंगे. ओके सो तो पहला रिजल्ट जो है सिंपल है, लेकिन चूंकि इसको इस्तेमाल बार बार करते हैं इसलिए इसको थ्योरम का दर्जा दे देंगे, राइट. तो फॉर a topological space X, the following statements are equivalent. पहला, X is connected. दूसरा, X does not have a proper क्लोपेन का मतलब होता है Close or open, sir? एग्जैक्टली पहले ही बताया था, क्लोज्ड एंड ओपन. इट डज नॉट हैव ए क्लोपेन सबसेट. सही याद है आपको. नंबर थ्री, each continuous function f from X to any discrete space Y containing at least 2 points is constant. And fourth, there does not exist non-empty subsets AB of X such that A union B is equal to X, A intersection B is empty, and A intersection B is also empty. Okay, so let us see how much कितना इसका इसी पेज में करेंगे, अदरवाइज आई हैव टू गो टू नेक्स्ट. So, one implies two. One implies two. So, if X has a proper clopen
subset say A, then clearly A together with its complement is a disconnection of X contradicting 1। तो अगर हमको दिखाना है ये, तो मान लीजिए X कनेक्टेड है, हमको दिखाना है does not have a proper Clopin subset. If possible, suppose X is a proper Clopin subset A, तो अगर A क्लोज भी है और ओपन भी है तो कॉम्प्लीमेंट भी इसका ओपन हो जाएगा, A भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, एंड ऑब्वियसली A यूनियन X माइनस A इज इक्वल टू X, and obviously A intersection X minus A is equal to empty also. So you have got two disjoint proper open subsets जिनका की यूनियन X है. So इसके मुताबिक A comma complement of A will form a disconnection of X, right? इसका मतलब कि X cannot be connected, तो ये violate हो जाएगा. So that is how 1 implies 2, right? अब नंबर 3 पे आइए, सॉरी 2 implies 3 पे आइए, 2 implies 3 पे आइए. राइट, तो हमने क्या मान लिया है, 2 को मान लिया है, 2 को अस्यूम कर लिया है. सो मान लीजिए इफ पॉसिबल let there exist a continuous function f from x to y where y is discrete with at least 2 elements. Okay, if let there exist a continuous function, हमको देखना है कांस्टेंट है which is not constant. कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, वो फंक्शन जो कि सभी को एक ही जगह ले जाए. तो कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट का मतलब कि कम से कम 2 जगह पर एलिमेंट्स को भेज रहा है. तो मान लीजिए, तो सपोज ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, तो हो क्या रहा है, तो देखिए हो क्या रहा है कि ये मान लीजिए आपका x है, ये आपका y है, तो अगर कांस्टेंट नहीं है तो सब एक जगह नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा जो कि यहाँ जा रहा है मान लीजिए, और एक एलिमेंट मिलेगा जो कि यहाँ जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं. हो सकता है बाकी एलिमेंट भी यहाँ चले जाएं, लेकिन सब सभी की जगह नहीं जाएंगे. सो आई कैन राइट, सो देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स इन x, कुछ नाम दे देते हैं. There exists x1, x2 in x such that f of x1 is not equal to f of x2. ठीक है, so you can take this one, you can take so this is not constant, so I can get this. So what do I do? I do the following, right? So कैसे लिखे? Okay, put fx1 to be equal to y1
fx2 to be equal to y2. Further, let a be equal to f inverse of y1. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है, तो हमने क्या किया कि इसके इन्वर्स में ले ली थी. इन्वर्स इमेज में हो सकता है कि ये और भी एलिमेंट मिल जाए, बहुत सारे एलिमेंट जा सकते हैं इस पर, राइट. ये हो सकता है इन्वर्स इमेज, दिस पे भी इन्वर्स इमेज, ये तो होगा ही, हो सकता है और भी हो सकते हैं. सो पुट दिस थिंग, सो सिंस y is discrete, each subset is open as well as closed. So this thing is Clopin. Whereby चूंकि f कंटिन्यूस है तो इनवर्स में जब ओपन सेट इज ओपन, इनवर्स में जब क्लोज सेट इज ओपन, लेकिन ये तो ओपन भी है क्लोज भी है. इसका मतलब कि f इनवर्स ऑफ y1 यानी कि a इज क्लोपेन. ऑल्सो ये भी क्लियर है, ऑल्सो दिस x1 या x2, ऑल्सो x2 cannot belong to this A. So therefore, A is a proper Clopin subset in X. Contradicting हमारी hypothesis number 2. Therefore 2 implies 3, right? 2 implies 3. हमने मान लिया था कि X does not have a proper subset, फिर दिखाया कि अगर ये नहीं होगा तो X के अंदर proper subset मिल जाएगा. That is why 2 implies 3. अब हमारे पास आता है, अच्छा, नॉर्मली आप पाइएगा कि अक्सर यहीं पर कई किताबों में इतना ही दिया होगा, राइट. कई में इतना ये भी दिया होगा, लेकिन कई लोगों ने ऐसे डिफाइन किया हुआ है कनेक्टेडनेस, राइट. तो ये ध्यान में देते हुए कुछ किताबें यहीं तक सीमित रहती हैं. तो लेट मी इमीडिएटली शो y3 implies 1, फिर हम इस पर भी आ जाएंगे. ओके, सो हालांकि मुझे दिखाना चाहिए 3 implies 4, लेकिन जिनके पास वो किताबें हैं जिसमें केवल 1, 2 और 3 इक्विवेलेंट दिखाया गया, उनके लिए शायद दिस विल बी हेल्पफुल. सो 3 implies 1. 3 implies 1. तो हमने मान लिया है कि x ऐसा है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन टू ए डिस्क्रीट स्पेस हैविंग एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट, और तब दिखाना है कि x इज कनेक्टेड, राइट. तो अगर इसके बावजूद भी x कनेक्टेड तो क्या हो जाएगा, राइट. इफ x इज, अच्छा हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे करेंगे. हो गया? Yes, sir. ओके. सो व्हाट आई विल डू इज कि हम सीधा ही कर देते हैं, डायरेक्ट 3 implies 4, क्यों उसको 2 बार रिपीट करें. सो लेट मी प्रूव स्ट्रेट अवे दिस थिंग. सो नाउ वी प्रूव 3 implies 4, उसके बाद कर देंगे 4 implies 1, उससे भी हो जाएगा 3 implies 1, तो थोड़ा लंबा रूट हो जाएगा, बट एनीवे यू कैन डू इट. सो 3 implies 4. सो हम मान के चल रहे हैं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन with this property. So suppose
4 ट्रू नहीं है. If there exists non-empty AB such that A union B is equal to X, A intersection B is equal to phi, which is equal to A intersection B, then surely ये भी होगा. ये हो जाएगा बराबर फाई के और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी बार तो बी से बड़ा है ना, तो जब ए इंटरसेक्शन बी बार एम्प्टी है तो और छोटा वाला तो होगा ही, ये भी हो जाएगा आपका. मोर ओवर फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी बार is equal to empty, ये वाला पार्ट, एंड ए यूनियन बी बराबर एक्स के है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको और बड़ा कर देते हैं, तब भी एक्स के बराबर होगा. हम और बड़ा ही कर रहे हैं ना, एक्स के बाहर तो कुछ जाएगा, सबके सब एक्स के सबसेट, ये भी दोनों हो जाए. फ्रॉम दीज टू वी गेट वी गेट, देखिए हो क्या गया, हमने क्या किया है कि हमारा ये x है, ये जो x है हमारा, ये जो x है, ये क्या कहता है, ये पार्ट मान लीजिए a है और ये पार्ट मान लीजिए ये है. तो a यूनियन b बार इज इक्वल टू x और a इंटरसेक्शन b बार इज इक्वल टू फाई. इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b. वी गेट A is equal to the complement of B. और चूंकि B बार closed है तो complement is open, whereby A is open. और ठीक वैसे ही आप दिखा पाइएगा B is also open. अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये हो गया, आपके पास दो नॉन एम्प्टी, अब मालूम चल गया कि ये ए बी ओपन भी है. दो नॉन एम्प्टी ओपन सेट मिल गए जिनका यूनियन बराबर एक्स के है और इंटरसेक्शन दोनों का एम्प्टी है. तो आप केवल इतना देखिए कि ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए, ये चीज याद रखिए और ये चीज याद रखिए कि ये भी ओपन है और ये भी ओपन है. तो डेफिनेशन कनेक्टेड क्या कहती थी कि स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स जिनका यूनियन एक्स हो और इंटरसेक्शन एम्प्टी हो. यहां तो मिल गया, इसका मतलब द स्पेस इज नॉट कनेक्टेड, राइट. सो एक्स cannot be connected. हम क्या दिखा रहे थे, नहीं 3 implies 4 हो गया कि नहीं अभी. ओह आई एम सॉरी. अच्छा ठीक है, कोई हो जाएगा. तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं. अभी हमको लगा हमको 4 implies 1 दिखा रहे हैं. यहां तक आप पहुंच गए. Now what we do is the following. Now, let Y be a set consisting of only 2 elements. On Y, okay. On Y, put the discrete topology. तो हमारे पास एक discrete space मिल गया with at least 2 points. Now define a map
define a function f from x to y as पूरे के पूरे f को भेज दे रहा है मान लीजिए a पर और बाकी को भेज दे रहा है b पर। अब देखिए पूरा x कवर हो गया क्योंकि x जो है a और b से मिलकर बना है और डिस्जॉइंट है। तो आपने क्या पूरे a को भेज दिया यहां पर, जैसे मान लीजिए कि ओके ये मिल गया आपको, राइट। देन इस टोपोलॉजी में हमको देखना है फंक्शन कंटीन्यूअस है कि ओपन सेट्स क्या है इसके। ओपन सेट्स क्या है इसके? ओपन सेट जो कि डिस्क्रीट है ना, ओपन सेट्स क्या है इसके? फाई है, ये है और पूरा पूरा वाई, यही इसके ओपन सेट्स हैं। तो फाई की इनवर्स इमेज फाई हो जाएगी, ए की इनवर्स क्या मिलेगी? ए, कैपिटल ए, और कैपिटल ए ओपन है तो ये मिल गया। और इसकी इनवर्स इमेज क्या मिलेगी? बी, वो भी ओपन है। और y की इनवर्स क्या मिलेगी आपको? x मिलेगी, क्योंकि आपने ये मैप ऑन टू है, राइट। सो यू कैन सी दैट देन f is continuous, then f is continuous अच्छा तो हमसे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। मिक्सअप क्या हो गया है? आई डोंट नो हाउ टू रिपेयर इट। हमने जल्दबाजी में बजाय 3 implies 4 के हमने शुरुआत तो कर दी 4 implies 1 की। 4 implies 1 की शुरुआत की तो हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा करते हैं, अब पूरा बिठा के दोबारा लिखेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 4 implies 1 और 3 implies 4 आपको अलग से प्रूव करके दिखा देते हैं। सो थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए कि हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। सो दिस आई विल राइट एज, बस कंफ्यूज कर गए लिखने में, 4 implies 1, ठीक है। तो अब ये मान के अभी इसको हम प्रूव कर देंगे, 3 implies को अलग से कर देंगे। 4 implies 1 में हमको ये दिखाना है, राइट। तो हमने क्या किया कि maybe अच्छा how do I repair it? ने क्या मिक्स करके सब गड़बड़ कर दिया है। implies 3, if there does not exist AP, ओ फिर गड़बड़ लिख दिया है। हम प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव हो गया है, एकदम पूरा मिटाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम यहाँ लिखेंगे दिस, एक्चुअली हम प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर 1 implies 4, ये हमने 1 implies 4, तो हमने एक्स कनेक्टेड मान लिया। फिर दिखाना है कि 4 implied है, तो मान लीजिए कि देयर एग्जिस्ट, हाँ इसका निगेशन मान लिया। सपोज देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी AB विद दिस प्रॉपर्टी, देन वी हैव दिस थिंग। तो यहाँ तक ठीक है, राइट। अब इस पे आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसको हम काट देते हैं, अभी इसको हम बाद में कर लेंगे, इतना वाला पार्ट। तो ये है, ये ठीक लिखा हुआ है, वेयर बाय ए इज ओपन लाइक सो। thus this pair forms a disconnection of
fx contradicting। अच्छा मैं फिर से दोहरा क्योंकि सब मिक्सअप हो गया है, ध्यान सुनिएगा। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 1 implies 4, 1 implies 4, फिर दिखा देंगे 4 implies 1, इसका किस्सा खत्म कर देंगे। 1 implies 4, 1 implies 4, तो मान लिया कि एक्सिस्ट कनेक्टेड, फिर दिखाना है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो अगर एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ए बी एग्जिस्ट करते हैं, देन यू कैन सी दैट वी हैव बीन एबल टू शो दैट ए एंड बी आर ओपन एंड दिस थिंग आल्सो हैपेंस। तो यहाँ पर आपको दो डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स मिल गए जिनकी यूनियन एक्स है, और उसी को बोलते थे डिस्कनेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, राइट, दिस पेयर ए पेयर ए बी एट डिस्क्राइब्ड अबव, कैसा, जो कि नॉन एम्प्टी हो, डिसजॉइंट हो, ओपन हो और यूनियन बराबर इसके हो, जो कि इसके अंदर है, ए बी के अंदर। सो दिस इज गोइंग टू बी providing us a disconnection of it, therefore x cannot be connected, and this will contradict our hypothesis that 1 holds. So therefore 1 implies 4 to ho gaya, right? And now we prove 4 implies 1. तो अल्टीमेटली वही बात हो गई कि हमने कहा था कि नॉर्मली 1 2 3 होता है, तो 1 2 3 को हम कर देंगे और 1 और 4 अलग से हो गया। तो 4 implies 1 क्यों हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा कि तो हमने मान लिया है assume 4, if हमको दिखाना है x is connected, if x is not connected, then there exists A, B, which are non-empty disjoint जिनका यूनियन x है, एंड ए बी आर ओपन। कनेक्टेड नहीं तो कम से कम एक पेयर ऐसा मिलेगा, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स जिनका यूनियन x है और दोनों डिसजॉइंट है। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर clearly A intersection this thing is also empty। दिया केवल इतना है लेकिन ये भी फॉलो कर जाएगा। Why? Because B बार में क्या है? B बार में B के अलावा B के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं। तो अगर हम दिखाना चाहते हैं कि A सेक्शन B बार इज एम्प्टी, तो दिखाना पड़ेगा कि A का कैपिटल A का कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। Since for every A ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, for every A जो कि ओपन दिया हुआ है, so every open set is a neighborhood of each of point is a neighborhood of A। तो अगर स्मॉल a B का लिमिट पॉइंट होता तो स्मॉल a की हर नेबरहुड को B से इंटरसेक्ट करना चाहिए था। A भी नेबरहुड है लेकिन A का इंटरसेक्शन B से एम्प्टी है, therefore is a neighborhood of A which does not meet B। So A cannot be in this thing, क्योंकि इसमें लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकता इसका लिमिट पॉइंट। तो कोई भी A जो होगा वो इसके अंदर नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी। लाइकवाइज ये भी हो जाएगा। तो आपको
अगर हमने 4 को मान लिया और उसके बावजूद अगर हम कहते हैं कि 1 अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हमको ऐसे ये भी मिल जाएंगे, लेकिन वहां से ये भी ऐसे निकल के आ जाएंगे कि ये भी हो जाएगा. बट दिस शोज कि आपको एक पेयर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ए बी मिल गए जिनका यूनियन एक्स है, और ए इन सेक्शन बी बार इज एम्प्टी, ए बार सेक्शन बी इज एम्प्टी, विच वायलेट्स नंबर 4, राइट. This contradicts 4. So therefore, this thing is proved. So 1 and 4 are equivalent. 1 and 4 are equivalent. तो हमको कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? अब हमने दिखा दिया कि 1 implies 2, 2 implies 3, तो 3 implies 1 कर देते हैं. ओके, तुम्हारा पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. 3 implies 1 and then we'll stop. 3 implies 1. तो हमने मान लिया है कि each continuous function from x to a discrete space with having at least 2 points must be constant. तब दिखाना है x is connected. मान लीजिए x connected नहीं है, right? So assume 3. If x is not connected, there exists AB with A B non-empty, A union B is equal to X, A section B is equal to empty, and AB are open. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 1 मिनट लगेगा, लीजिए. यस सर, हो गया. Okay, so now we do the following. Let y be a set with at least 2 points. On y, put the discrete topology जो लिखा था हमने. Define f from x to y as f of a is equal to y1, f of b is equal to y2, where y1, y2 belong to y and y1 is not equal to y2. This is possible because y में कम से कम 2 एलिमेंट्स है, तो कम से कम हमको मिल जाएंगे 2 एलिमेंट जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे भेज देते हैं. तो अब चूंकि कैपिटल Y पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो ये ओपन भी है, क्लोज भी है. तो इसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? इसकी इनवर्स इमेज होगी A. So since A is f inverse of y1, B is f inverse of y2, and y1 and y2 are closed as well as तो ये ओपन, मान लीजिए ओपन ले लिया आपने, तो इसकी इनवर्स इमेज ओपन हो जाएगी. F is continuous. Clearly F is not constant, right? Contradicting our hypothesis 3 कि हमने एक ऐसा continuous map from X to a discrete space with having at least 2 points produce कर दिया जो कि constant नहीं है. So इसका मतलब कि 3 implies 1, right? So 3 implies 1. So this completes the proof of the equivalence of all the 4 conditions. और अब इसका इस्तेमाल करके हमको एग्जाम्पल देना या और रिजल्ट प्रूव करना करेक्टनेस बारे में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, विच वी शैल डू टुमारो. ठीक है.
You can take the screenshot and leave. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Most welcome.